अपोजिट कृष्णा अभिषेक, तो जोरदार तालियों से हम स्टेज पर बुलाएंगे श्वेता जी को. Then we have Naira Banerjee ji coming up on stage. This Indian film actress and assistant director have appeared in various television serials and she's also made her debut on big screen with Kamal Dhamal Malamal and also seen in various Telugu films. तो जोरदार तालियों से हम स्टेज पर बुलाएंगे नायरा बैनर्जी जी को और उन सभी को फेलिसिटेट करने आई रिक्वेस्ट तेजिंदर जी टू प्लीज कम फॉरवर्ड. And we have Naira Banerjee ji with us. जोरदार तालियां हो जाए नायरा जी के लिए. Thank you so much, ma'am, for being with us. Then we have our next guest, Shweta ji. जोरदार तालियां हो जाए श्वेता जी के लिए एक बार. Thank you so much for giving us your time. We also have our beautiful guest with us, Mahmood Bhai. उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much, sir, for being with us and giving us your time. We are honored to have all of you here. And और अब आप सबके चहीते, आप सभी के प्यारे Mr. Ejaz Khan. Everyone make some noise! Thank you so much, sir, for being with us at Malad Festival 2018. And now I'll request our other guest, Vinod Shela ji, Daksha Patel ji, Sejal Desai ji, Gangaram Jamnani ji, to please come on stage और इन सभी को फेलिसिटेट करेंगी our very loving जया सिंह दीवाना जी. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाएं. जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी गेस्ट के लिए एक बार. And we have Vinod Shela ji, President of North Mumbai's BJP wing. Come on everyone, make some noise for Vinod ji. Thank you so much, sir, for being with us and giving us your time. And now we'll felicitate Shrimati Daksha Patel ji, Chairperson of North Prabhag Samiti. And I'll request Jaya ji to please felicitate them. जोरदार तालियां हो जाए दक्षा जी के लिए एक बार. Thank you so much, ma'am, for giving us your time. And I'll request Jaya ji to felicitate our next guest, Shrimati Sejal Desai. She's a municipal councillor. जोरदार तालियां हो जाए सेजल जी के लिए एक बार. And last but not the least, we have Shri Gangaram Jamnani ji, senior leader of BJP. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए एक बार. Come on everyone. Thank you so much all of you for giving us your time. And I'll request Sankalp Sharma ji and Suresh Rawal ji to please also come on stage. Sankalp Sharma ji and Suresh Rawal ji to please come on stage. और बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है उस अमेजिंग परफॉर्मेंसेस की by none other than Mr. Brijesh Chandaliya and Jibber Jabber. I'll request our guest to please भाई ऑडियंस कुछ सुनना चाहता है कि नहीं? खूबसूरत दो हीरोइन आई है कि नहीं? अगर हाँ तो जोर से चिल्लाओ फिर. हाँ देखो हाँ कुछ बोलो मैडम. एक्सक्यूज मी प्लीज यार ऐसा मत करिए. देखिए Hi everyone. First of
all, thanks Teju for inviting me here. It's a pleasure being part of this. It's a lovely festival and a great opportunity for everyone to showcase their talents, connectivity. So it's a great thing you're doing, and I wish you all the best and enjoy all of you. समझ में आया? हेलो, अभी एक बार वापस बोल सकती क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बोल देंगे तो चलेगा। ट्रांसलेट ना? मुझे ही समझ में नहीं आया, मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा? एक मिनट इनसे सुनते हैं। Good evening everyone. First of all, wish you all a very, very happy new year. May this year bring नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा हो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तजेंद्र हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग दिस, और इस टाइप के फेस्टिवल्स आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं। यू आर डूइंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, आई नो, वॉइस ऑफ मलाड, मिस मलाड, एंड देयर मोर, राइट? देयर इज ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन ऑल्सो। सो आई वुड लाइक टू विश जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। मे द राइट पर्सन विन and enjoy the festival. It's a 10 days festival, so please enjoy. Do come, get your friends and have a ball of a time. Thank you. बस ये हम लोग ये भूल जाते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है यार? लेकिन अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है, लड़की नहीं पढ़ती मेरे भाई। Excuse me, would you like to have friendship with me? वैसे आपका नाम क्या है? मतलब भगवान ने आपके बाद खूबसूरत लड़कियां बनाना ही बंद कर दिया है। इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक कभी नहीं बोला। थैंक यू तजेंद्र, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं। और पारुल, माय लवली डार्लिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, वो कहते ना, वो मैंने प्यार किया, मैं सलमान भाई डायलॉग तो बोल दिए, लेकिन उसका काम मैं कर रहा हूँ। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, तो दोस्ती निभाना बहुत ज़रूरी है। तेजेंद्र भी हमारे दोस्त बन चुके हैं अब, और इंशाल्लाह आगे से हम हमेशा मलाड फेस्टिवल में अगर ज़िंदा है तो आते रहेंगे। और यहाँ पे जितने भी सारे सीनियर लोग हैं जो मलाड के लिए इतना काम करते हैं, कॉरपोरेटर है और प्रेसिडेंट है, और हमारे सर यू लुक ग्रेट यार। क्या खाते हो आप सर? हैं? पीते हैं सर? नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, हाँ सर। और यहाँ पे जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ बैठी है, हमारी बहनें बैठी है, हमारी मम्मी बैठी है, हमारे कुछ अंकल है, वो हमारे दोस्त है, और मेरे फैंस भी है कुछ। यहाँ पे मेरे फैंस है कि नहीं है यार? कमाल करते हो यार, थैंक यू यार। और तेजेंद्र को आप सब लोग दिल से थैंक यू बोलो। बताओ क्यों? अरे भाई, यहाँ पे मिस मलाड भी होने वाला है। लेकिन मिस मलाड भाई मेरे साथ डिनर पे जाएगी क्या? मिस मलाड बस जाएगी तो कुछ हो सकता है उसका, वरना पता नहीं फिर है। वैसे आई विश ऑल द लक टू जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं। उनको यही कहूंगा कि कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। तो ऐसे सारे सिकंदर को मेरा सलाम, दुआओं में याद रखना। और मेरा एक गाना आया, सुन लेना जरा, बॉम्बे की लैंग्वेज में है थोड़ा सा, लेकिन सर मैं इससे कोई वायलेंस नहीं फैलाना चाह रहा हूँ सर। इस गाने को मैंने लिखा है, और क्या देखो, परमिशन लेना बहुत जरूरी है यार। वो कहते हैं कि लड़की बस और ट्रेन, पीछे भागो तो छूट जाती है, वहीं खड़े हो दूसरी आती है। आज मेरा लक बहुत अच्छा है, दो है। थैंक यू यार गॉड, तुम्हारा मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ यार। और तेजेंद्र का भी। तो उसके बोल कुछ ऐसे, हल्का हल्का नशा छाने दो, तन्हाई का मजा आने दो, ऐ मेरे सनम कुछ नहीं है गम, जो भी होता है वो होने दो, प्यार में जरा खुद को खोने दो, प्यार में जरा खुद को खोने। वैसे आप कौन सी चक्की का आटा खाती है? नहीं, आप बहुत खूबसूरत है कसम खुदा की।
नहीं, हम भी हमारे मोहल्ले में यही चक्की का आटा बांटने लगेंगे है कि नहीं? थैंक यू सो मच मेरी जान, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। बाकी कुछ मत करना, मम्मी डैडी मारेंगे भाई, दुआओं में याद रखना। थैंक यू तेजिंदर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. Thank you and thank you, thank you. Thank you so much. Thank you Ajaz media, sir. thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए एजाज सर के लिए एक बार. And now I'll request our Vinod Shailaji to please come forward and say a few words. जोरदार तालियां हो जाए विनोद जी के लिए एक बार. Come on everyone. लहरों से जो टकराता है उसे चट्टान कहते हैं, लहरों से जो टकराता है उसे चट्टान कहते हैं, और चट्टानों से जो टकराता है उसे जवान कहते हैं, युवा कहते हैं। ऐसे सभी मेरे युवा दोस्तों जिनकी अगुवाई में ये आज का कार्यक्रम हो रहा है, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी तेजिंदर जी, एजाज भाई, मिस उत्तराखंड कंडूरी जी, दक्षा पटेल जी, सेजल देसाई जमनानी जी, नायरा जी, अरविंद यादव और मेरे सभी दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। आज जया बहन किधर है भाई? पीछे पीछे खड़ी रह रही है, मम्मी अपने बच्चे के कारनामे देख रही है। आज बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी तो बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती है रेगुलर, बट मेरे यूथ विंग ने सही मायने में यूथ विंग को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया मलाड महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। बहुत सारे टेंशन्स हमें रेगुलर ज़िंदगी में होते हैं और नया नया इवेंट तो मुंबई में आज डेली चालू ही है, और उसके बावजूद भी आप सबके जीवन में थोड़ा आनंद लाने के लिए क्रिएटिव मेरा दोस्त तेजिंदर ने आज का ये प्रोग्राम किया है, इसीलिए उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि उनका प्रेजेंस इटसेल्फ इज सफिशिएंट एंड दे हैव ऑलरेडी मार्क देयर इम्पैक्ट, सो आई डिड नॉट टू टॉक ऑन दैट, बट रियली बढ़िया आप लोग का प्रेजेंस है और इसी तरह मलाड में आइए, वी विल ऑलवेज वेलकम यू। और मैं अगर गलती 3 लोगों का अगर अभिनंदन नहीं करूँ 3 इडियट्स का तो फिर गलत होगा। वो जो 3 इडियट्स है उसमें एक है जया तिवाना, एक है सतनाम सिंह तिवाना और तेजिंदर तिवाना। ये इडियट्स किसके लिए मालूम है? लोगों के जीवन में आनंद लाने के लिए इडियट्स है, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए इडियट्स है और इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक आनंद पहुंचाने के लिए इडियट है। भगवान ऐसा इडियट इस देश में सभी को बनाए तो शायद मोदी जी का टेंशन निकल जाएगा। आप सभी को अगेन ढेर सारी बधाइयाँ। जाते जाते एक सजेशन थोड़ा मैं तेजिंदर को दूंगा। तेजिंदर जी बहुत बढ़िया इवेंट है, एक छोटा सजेशन है, कुछ अच्छे मैसेजेस क्लीन मुंबई, क्लीन वगैरह इस तरह के, या प्लास्टिक डिस्कार्ड करो, ऐसे कुछ कर पाए तो एंजॉय भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम मैसेज भी अच्छे लोगों को जाएगा। धन्यवाद। Thank you so much Vinod ji, and thank you so much to all our guests. Thank you so much for being with us and giving us your time. जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी गेस्ट के लिए एक बार। बहुत सुना था। I've heard कि last year यहाँ पर I think many people came and it was a huge success last year. And there's some kind of a connection with Malad because मैं खुद 4 साल मलाड में रह चुकी हूँ पहले, तो I think it's a very good idea जहाँ पे लोग फ्लैट से बाहर नहीं निकलते, वहाँ पे पूरा मलाड एक जगह इकट्ठा हो रहा है and they are you know trying to know each other, they are here। और यहाँ पर यूथ को जैसे कि एक स्टेज मिला है अपने आप को शोकेस करने का, परफॉर्म करके दिखाने का, so I think it's a very great idea and I'm loving it।
लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे हिस्सा लेंगे इस फेस्टिवल के थ्रू? मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगी कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ये स्टेज तो है ही, इससे आगे और भी स्टेजेस हैं। बेसिकली आपको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर आप अपने आप को शोकेस कर पा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। वरना कितने टैलेंट होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है, यू नो, दे कैन नेवर गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस। सो it's a very good opportunity for them, and I would like to say that all the best, go and rock. न्यू ईयर का आगमन इस फेस्टिवल में हो रहा है, तो आप नए साल के आगमन में क्या कहना चाहेंगे? नए साल के आगमन में आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? नए साल के लिए मैं यही कहूँगी कि पुरानी जो भी चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर आप नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। नया साल आए, नए सिरे से सब कुछ शुरू कीजिए, और आई एम श्योर अगर आप पूरी मेहनत के साथ करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। देखिए, ये मलाड फेस्टिवल का दूसरा साल है, और व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैंने बैंड्रा फेस्ट, अंधेरी फेस्टिवल, ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि मलाड में भी ऐसा कोई फेस्टिवल होना चाहिए जो कल्चरल एक्टिविटीज़, एक इंटरेक्शन, एक प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ ऑफ मलाड। तो हमने ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया 2015 से। 16 में कुछ कारणों से हम नहीं कर पाए, ये 17 के बाद 18 ये ईयर है जो हमने इसको इनिशिएट किया है फिर से। आज हमारे जो चीफ गेस्ट है वो एजाज खान जी है, मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहित कंबोज जी है, एक्ट्रेस नायरा बैनर्जी है, श्वेता खांडूरी जी है। ऐसे हमें जो हमारा मलाड फेस्टिवल का जो बार है उसको हर साल, जैसे सेकेंड ईयर है हमारा, वो ग्रोथ होते एकदम एक ऊंचाई तक चल गया है, और मैं सोचता हूँ कि आगे के सालों में भी ये अच्छा ग्रोथ करेगा करके। आज के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में बात करें तो आज क्या क्या देखने को मिलेगा लोगों को, जो यहाँ पे विजिटर आएंगे उनको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? देखिए, आज जो हमारे बीच में ब्रिजेश सांडेला जी, जो बॉलीवुड के फेमस सिंगर है, जो बन्नो तेरा स्वैग, जो तनु वेट्स बंधु गाने, तो वो लाइव परफॉर्मेंस देने वाले आज फर्स्ट डे में। फिर आगे चल के हमारे जो मलाड फेस्टिवल के इस प्लेटफॉर्म में हमने ग्रुप डांस कंपटीशन रखा है, अंडर 16, अबाव 16, वॉइस ऑफ मलाड कंपटीशन रखा जो यूनिक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मलाड में। मिस मलाड कॉन्टेस्ट रखा है, जो मिस मलाड पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट, वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है मलाड में। तो ऐसे सब यूनिक चीज़ों से लोग अट्रैक्ट होकर हमें बहुत सारे एंट्रीज आई है, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा हमें रिस्पांस मिल रहा है ये सब इवेंट्स के लिए। तो मलाड फेस्टिवल की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम है वो खुश है कि जो हमारा ग्राफ है वो पिछले साल से भी ऊपर गया, और आगे के साल भी हमें लगता है कि बहुत अच्छा हम करेंगे। और जो मलाड अपने आप में एक टाउनशिप है, तो वो टाउनशिप के अंदर जो ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ चलते रहे तो लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा और एक्टिविटीज़ भी चलती रहेगी साथ में। लेकिन जैसे हम पॉलिटिकल टीम की बात करें तो यहाँ पे लाइक बीजेपी की तरफ से ये जो पूरी इनिशिएटिव लिया गया है कि मतलब एंटरटेनमेंट बेस कितना ज़रूरी हो जाता है अपने बेसिकली अपने। देखिए, जो ये मलाड फेस्टिवल प्रोग्राम है वो इस साल इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा, दैट्स द यूथ विंग ऑफ बीजेपी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यूथ है पूरा मुंबई के इकट्ठा होकर हमने सब साइड से एंट्रीज ली है, फ्रॉम वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, पूरे मुंबई के। तो ये हमने जो प्लेटफॉर्म है मलाड का, ये पूरे मुंबई पे देने की इस साल सोची, तो इसलिए हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर में करके इसको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्प्रेड कर दिया इस इवेंट को।
लाइक नए साल का अभी 5वां ही दिन है, तो फिर आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नए साल में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे देश की तब्दीली के लिए कुछ नए चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए कैसा है कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, उनको आगे आके स्वच्छ भारत अभियान और ऐसे सारे जो अभियान पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने निकाले हैं, वो सब इनिशिएटिव्स को हमारे देश में आगे लेकर एक बेस लेवल तक, एक विलेज लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक लेके जाना चाहिए। और आगे आके जो भी अच्छे इनिशिएटिव्स है उसमें खुलकर भाग लेना चाहिए सब युवाओं को। जैसे शुरुआत के हम दिनों में बात करें तो नए साल के कुछ 2 दिन बाद ही काफ़ी सारे आंदोलन भी शुरू हो गए थे। जाति को लेकर काफ़ी चीज़ों को लेकर एक आक्रोशक सीन दिखाई दिया था, तो उसके बारे में क्या करेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये सब है ना, एक पॉलिटिकल प्लानिंग रहती है, तो इसमें क्या होता है कि जो आदमी कुछ नहीं करता वो पिस जाता है इस सिचुएशन के अंदर। तो मुझे लगता है कि ऐसा सब सीन हमारे देश को जो पीछे लेके जाने वाले काम है, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसको शांति से सोचना चाहिए सभी लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं और क्या स्टेप ले रहे हैं हम। तो हमें देश को रुकाने का काम नहीं करना चाहिए, हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू। आखिरी में पूछना चाहूँगी कि मलाड फेस्टिवल में ये 14 तारीख तक चलने वाला है, तो इन 10 दिनों में और क्या क्या लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कुछ बताइए। देखिए हमने मलाड फेस्टिवल में समाज के सभी वर्ग को लेके चल रहे हैं। हमारे ये 10 दिन के प्लेटफॉर्म में एक सीनियर सिटीजन नाइट भी है, एक चिल्ड्रंस नाइट है, एक स्पेशली लेडीज़ नाइट है, ग्रुप डांस कंपटीशन है, वॉइस ऑफ मलाड सिंगिंग कंपटीशन है, फिर मिस मलाड ब्यूटी पेजेंट है। तो ऐसा हमने समाज के सभी वर्ग, बच्चों से लेकर बड़े तक का ध्यान रखा है। और आगे चलकर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल की जो प्लानिंग पिछले साल से अच्छी थी, अगले साल की प्लानिंग और अच्छी होगी मलाड फेस्टिवल की। थैंक यू। ज़्यादा लंबा नहीं, बस मलाड फेस्टिवल के बात कर रहे हैं। आप भी जज कर रहे हैं, इसमें क्या जज कर रहे हैं? बस इनका क्या नाम है? हाँ। थोड़ा बूम का वायर संभाल के। कौशल जी, देखा सर, एक और मान। थैंक यू। ये साइड आ जाओ, राइट साइड। थैंक यू। एक संभाल भाई, उसको बोल एक ही लाइट रखेगी, तो बंद करेंगे तो चालू रखेंगे। श्वेता जी, आज पहला दिन है मलाड फेस्टिवल का, क्या कहना चाहेंगे? आज ये दूसरी बार आप आ रही हैं यहाँ पे, क्या उत्साह है इस फेस्टिवल को लेकर? बहुत उत्साह है इस फेस्टिवल को लेके, क्योंकि ये ऐसे सिर्फ आप आके घूम फिर के नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक वॉइस ऑफ मलाड भी है, मिस मलाड है, एंड बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स रखे हैं विच इज़ रियली नाइस। एंड आई थिंक 10 डेज़ हैं, एंड 10 डेज़ में बहुत वैरायटी मिलने वाली है। तजिंदर जी हैज़ ऑलवेज बीन रियली नाइस टूवर्ड्स ऑल हिज एक्टिविटीज़। मैं लास्ट टाइम भी आई थी और मुझे बहुत मज़ा आया था, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज ये पूरे 10 दिन बहुत एंजॉय करेंगे सारे मलाड वाले या मलाड के आसपास सब जितने लोग हैं। आप यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट भी जज करने वाले हैं, तो क्या चीज़ क्राइटेरिया ध्यान में रख रहे हैं कि जज करने के लिए? जज मैं करने वाली हूँ, या एंड आई नो दैट द गर्ल्स आर न्यू, बट देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सी हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, एंड वंस दे enjoy what they are doing, I am sure it will be easy for us to judge them. और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज को लेके? नए साल का आगमन है, नए साल की शुरुआत है, इस तरह के फेस्टिवल से शुरुआत हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है। फेस्टिवल से जब कुछ भी स्टार्ट होता है तो आगे जाके पूरा साल ही फेस्टिवल की तरीके से जाता है। सो आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। विश मे ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, आज आप पहली बार आए हैं मलाड फेस्टिवल में, क्या कहना चाहेंगे तजिंदर जी को लेके? यहाँ पे जो इतना बड़ा ग्रैंड दूसरा साल है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का फेस्टिवल यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे
लोग पार्टिसिपेट करेंगे ब्यूटी पेजेंट में, सीनियर सिटीजन का भी फेस्ट होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे के बारे में? Firstly, I want to congratulate Tejinder for this event. He's a very old friend and I'm really glad कि इतने सालों से उनको जानकर he has reached in a position where he can conduct all these things. Having cultural events are very important because it keeps you engaged to each other. Everybody needs to showcase their talent, so this is a very good platform for them. I wish a huge success to this because this is the place where you come together, you share your knowledge, your talent, your experiences, you mingle with people and you create your connections. So it's an amazing place and I hope this festival goes on for years. 10 days is a very big time and all the best to all of you. ये यहाँ पे एक छोटा सा फेयर भी लगा हुआ है, तो आप कभी अपने बचपन में ऐसी कोई चीज़ें यादें हैं जो फेयर में लाइक झूला झूलना या इस तरह की कुछ चीज़ें याद है जो आप लाइक वापस एंजॉय करना चाहेंगे? Yes, of course. अगर adults allowed होते तो मैं ज़रूर वहाँ पे होती अभी. I'm still a kid at heart. I would love to. I mean, I really enjoy seeing such fairs. Obviously अभी हम लोग जाना बंद कर चुके हैं, लेकिन once in a while it's good fun to see it. बाकी लाइक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, लाइक 2018 का आगमन है फेस्टिवल की, 2 years लाइक ओपनिंग हो रहा है हमारे फेस्टिवल का, तो क्या कहना चाहेंगे 2018 में क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, चेंजेस या फिर कुछ प्रोग्रेस हो हमारी इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे? See, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है. I trust my government and I have to support it. कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती, बट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस. जो खराब चीज़ें होती है वो पहले निकल जाती है फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स टू कम इन. सो आई थिंक वी शुड ट्रस्ट एंड वी शुड जस्ट बी ओपन टू ऑल द गुड थिंग्स एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन. थैंक यू. कैजुअल लुक में आप यहाँ पे फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल को लेके आप? ये बीजेपी के यूथ विंग का फेस्टिवल है. मैं बीजेपी का भले नॉर्थ बॉम्बे का बेसिक का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत की करियर बीजेवाईएम यानी यूथ विंग का महाराष्ट्र का मैं वाइस प्रेसिडेंट था. तो जैसा देश वैसा वेश, इसी तरह आना चाहिए. और पूरा कलरफुल इवेंट है, एंथू सब है और सब यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो हमने भी सोचा हम भी एंजॉय करें. ऑलवेज इतने पॉलिटिकल टेंशन्स में रहते हैं, बाकी सब काम रहते हैं. आपको तो मालूम है मुंबई में ये 4 दिन में क्या चल रहा है, तो उसमें थोड़ा यूथ के साथ आगे जाएं. और आफ्टर ऑल यूथ ही सपोज देश को चलाने वाले हैं. यूथ पावर इज़ नेशंस पावर. जैसे हम लाइक देश के प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, बीजेपी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ताकि वो और भी प्रोग्रेस करें. इंडिया के नाम जो कंपेयर करा जाता है कि एक देश की ऊंचाई का नंबर 1 देश कहा जाए, जो भी बहुत कुछ हुआ है हमारे पिछले सालों में, तो क्या प्लान है इस साल के नए प्रोग्रेस के लिए, क्या क्या करना चाहिए? प्लान सभी एक ही है. जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की योजनाएं लाई है जनता के लिए, वो सबसे पिछड़े हुए आदमी तक उस योजना को लेके जाना. क्योंकि अभी हम अपोजिशन में नहीं है. पहले हम अपोजिशन में थे, तब आंदोलन करते थे, ये करते थे, वो करते थे. अभी हम सत्ता में हैं, तो बहुत अच्छी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, सबके लिए लाए. यूथ के लिए लाए, महिलाओं के लिए लाए. तो हम पूरा ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये बेनिफिट सही व्यक्ति को सही मात्रा में सही वक्त पे पहुँचे, तो उसका प्रोग्रेसिव रिजल्ट आ जाएगा. जैसा आपने क्या स्टार्टअप है, नए यंगस्टर्स के लिए बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए योजना है. मेक इन इंडिया है, उस तरह की योजना है. इंश्योरेंस की महिलाओं के लिए अलग अलग योजना है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये विषय है. कचरा मुक्त वार्ड करना या स्वच्छ मुंबई, क्लीन मुंबई. तो ये सही प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट डाल रही है और सही लोगों तक यानी आम जनता तक उसको पहुंचाना है. सो आवर मेन एम इज़ टू रीच टू दैट पीपल एंड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ नरेंद्र मोदी जी टू दैट लेवल. इन 4 दिनों में जैसे जो नए साल के आगमन में जितना कुछ देखने के लिए मिला है देश को, पुणे से लेके यहाँ पे मुंबई तक में भी बहुत सारी लाइक एक आक्रामक एक रूप देखने के लिए मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये मान्य था कि मतलब एक चीज़ को लेके, जाति को लेके, कास्टिज्म जो वापस देखने के लिए मिल रहा है? ये बहुत सैडेस्ट पार्ट है. एक तरह देश इतने प्रगति के राह पे चल रहा है और कोई एक विषय लेकर, विषय इम्पोर्टेंट है मानता हूँ मैं,
किसी की जान जाना ये बहुत गलत ही बात है, लेकिन उस चीज़ को किस तरह खींचना और पूरे महाराष्ट्र को उसके चपेट में लेना, एक तो हज़ारों करोड़ का नुकसान तो अपनी जगह हो ही गया, लेकिन एक मैसेज बाहर के देशों में क्या जाता है, महाराष्ट्र के बाहर क्या जाता है, इसके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। और ये कास्ट लैंग्वेज इसके ऊपर बाहर आकर डेवलपमेंट शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और वो हमने सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये इवेंट 2-3 दिन जो गए उससे यंगस्टर्स ने तो ये मैसेज लेकर लोगों में जाना चाहिए कि आज के बाद यूथ कोई कास्ट क्रीड लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करेगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, यही हमारा सूत्र रहेगा। आज के हम बात करें फेस्टिवल के बारे में बात करें तो कई सारे पेजेंट्स होने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उन नई लड़कियों को जो यहाँ पे पेजेंट्स में मिस मलाड पेजेंट्स में हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तेजिंदर के बारे में तो ज़रूर कहूँगा, ही इज़ जेम ऑफ आवर पार्टी। एक यूथ क्रिएटिव इवेंट है, आउट ऑफ फोकस जाके सोचता है, और हम एज ए बीजेपी हम बहुत सारे कैटर के लिए काम करते हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए करते हैं, लेडीज़ के लिए करते हैं, मिडल एज लेडीज़ के लिए करते हैं। तो हमारे यूथ विंग ने, जो अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी तेजिंदर ने सोचा कि मैं यूथ के लिए काम करूंगा, और बहुत रंगारंग इवेंट्स अलग अलग मैं बोल सिचुएशंस के हिसाब से उन्होंने म्यूज़िक डांस और सबके प्लान किए। बहुत मज़ा आएगा और मलाड की जनता इसे भूलेगी नहीं। मलाड फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरे हाथों से इनोग्रेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम फीलिंग वेरी हम्बल एंड बस यही कहूँगा कि हर बार धूम मचाए मलाड फेस्टिवल, जैसे लास्ट ईयर मचाया था उसके पहले और अभी भी। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू डू दिस। यहाँ पे मलाड ब्यूटी पेजेंट भी होने वाला है, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज मतलब 12 तारीख को बेसिकली मेन रैंप वॉक करने वाली, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यार ये मेरे साथ बड़ी चीटिंग की गई है कि सारी खूबसूरत लड़कियां 12 को आने वाली है और मुझे इनॉग्रेशन में आपने बुला लिया। बट आई विश देम ऑल द लक एंड मे द बेस्ट वुमन गेट द प्राइज। जितनी भी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं वो सब जीते और क्या कहूँ मैं। आप कितना फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं, डूइंग सो मच गुड वर्क, इट्स गोइंग टू अनदर लेवल नाउ। तो आप व्हाट इज दैट ड्राइव्स यू टू बी डूइंग सच, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना कुछ, विद सो मच ऑफ सपोर्ट, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट मॉरली एंड एथिकली? आई डोंट नो, समहाउ आई एम मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे अंदरूनी सुकून मिले और मुझे अच्छे से नींद आए। एंड अगर मुझे सोसाइटी कुछ देती है तो मुझे सोसाइटी को वापस देना है। एंड आई सी लॉट ऑफ बिग पीपल ऑल्सो जो ये करते हैं, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अपना अल्लाह के बंदे NGO स्टार्ट करूँ तो उसमें मैं ऐसा करूँ कि मैं खुद उनके लिए खड़े रह के मेहनत करूँ। पैसा दे देना एक और बात होती है कि चेक बनाया और दे दिया, लेकिन किसी की तकलीफ़ में खड़े रहना साथ में और उनको इंसाफ दिलाना, उनके लिए लड़ना, अब वक्त निकाल लेता हूँ, कर लेता हूँ, मज़ा आता है। आई फील लाइक अ हीरो, सो बहुत मज़ा आता है।
देखिए ये मलाड फेस्ट की खुशनसीबी है कि एजाज खान जी जैसे जो सोशल वर्कर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, ऐसे व्यक्ति जो एक रोल मॉडल है युवा के लिए, वो आके मलाड फेस्टिवल इनॉग्रेट करें, तो मलाड फेस्टिवल के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एजाज भाई का कि उन्होंने कीमती वक्त निकाल के ऑल द वे मलाड तक आए, और मलाड की जनता भी उनको शुक्रिया अदा करती है कि आपने समय दिया मलाड की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज। एजाज जी, नए साल का आगमन इस फेस्टिवल के थ्रू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए, हमारे युवा के लिए, यहाँ के मलाड के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत कम मिल पाता, और इस फेस्टिवल से लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, किड्स जोन बना हुआ है, तो एक अलग चीज़ का एक मेला लगा हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि खुशियों का मेला लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और करते रहो। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे हाथ से इनॉग्रेशन हो रहा है, एंड मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर भी आए हुए हैं। भाई प्लीज़ कम यार। तो हम लोग एक्चुअली सिटिंग में बैठे हुए थे, वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए क्योंकि हमें आना बहुत ज़रूरी था। तो ये है जो करता धरता है मेरे भाई यहाँ के, इनका ये मलाड फेस्ट है। तो इन्होंने एक्चुअली मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आता हूँ। सो लव यू। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आके मलाड फेस्टिवल में आके? एजाज जी आज इनॉग्रेशन करने वाले इस फेस्टिवल। बिल्कुल, मलाड फेस्टिवल जिस तरीके से हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इसका नाम हम बांद्रा में सुन रहे थे, बांद्रा फेस्टिवल में सुन रहे थे कि मलाड फेस्टिवल से, तो जिस लेवल पे जा रहा है ऊपर वाला करे और भी इसकी ऊंचाई चढ़े, और एजाज भाई के आने से ये चार चांदी लगेंगे डेफिनेटली इसमें। थैंक यू सो मच।